Hello everyone, welcome back to NRT classes. So today we are going to start the new chapter, that is chapter number 4 uh, from the diary of Anne Frank. Okay, so this chapter we are going to read today, and we are going to understand each one line or the sentences very clearly in Hindi also and English also. You will get that. Okay, so that is the chapter 4 from the diary of Anne Frank. From the diary of Anne Frank. Okay. So from the diary of Anne Frank is written by Anne Frank only. Okay. So it is like an autobiography. Autobiography means the book or the document which is prepared by the authors only, means the people which we are going to talk about in the chapter, he himself or she himself herself has written this. So that is the that. Okay, so we'll write by Anne Frank. So we are going to read and understand this also. So before you read, analyze Mary Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. So Anne Frank started this by the introduction and the date of her birth, that is February March, it was the time of 12th June 1929 she had born, and she died on February or March 1945. Okay, so 1945 में तो हमारे देश को आज़ादी भी मिली थी, इंडिया को. Okay, so that year she had died. So was a German है वो, and born in Jewish family girl. जेविस गर्ल मतलब कि जेविस फैमिली थी जर्मनी में, जो कि हिटलर का एक हमने पढ़ा होगा, नाजिज्म एंड ऑल दी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. सो दैट जेविस एक ऐसा कास्ट था उस टाइम पे, उसमें इन्होंने बॉर्न किया था. एंड वाइल इन हाइडिंग विथ अ फैमिली, जब उनकी फैमिली हाइड मीन्स वो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो जेविस लोग जो थे उनको पसंद नहीं करते थे, हेट करते थे जर्मन पीपल्स, दैट्स वाई. ओके, सो फॉर फ्रेंड्स इन आम्स्टरडैम ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड. सो दे वर लिविंग टुगेदर इन द आम्स्टरडैम during the German occupation of Netherlands. Okay, so this is the means data which you should learn. आपको याद करना पड़ेगा एंड आप अंडरलाइन भी जरूर कर लीजिए. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in German. तो जब नाजीज का पावर आ गया जर्मन में, तो इनकी फैमिली ने क्या किया कि आम्स्टरडैम में they have shifted. So but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. बट जब नेदरलैंड यानी कि आम्स्टरडैम में भी जब
नाजीज कम्युनिटी वाले आए एंड एंटर किया इन्होंने, तो ये ट्रैप्ड मीन्स पकड़े गए. ओके, बिकॉज दे वर द जूइश एंड दे वर द enemies of Nazism. That's why. So, as a persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden room in her father Otto Frank's office building. So, जब जेविस को नाजिज्म वाले ढूंढ रहे थे, तो इनके जो फादर हैं, दैट इज ऑटो फ्रैंक, आपको नेम अंडरलाइन कर लीजिए, ऑटो फ्रैंक्स, उनकी जो ऑफिस की बिल्डिंग थी उसमें ये लोग जुलाई 1942 को जाकर छुप गए, हाइड हो गए. ओके, टू एस्केप फ्रॉम द नाजिज्म से बचने के लिए. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और 2 साल बाद यानी कि 1944 में जब ये छुप के बाहर आए, द ग्रुप वॉज बेट्रेड and transported to the concentration camp system where Anne died. Anne died of typhus in Bergen-Belsen with days of her sister. So, तो ये बहुत ही बुरा दिन था 1944, बिकॉज उसके बाद उनको क्या किया गया कि कंसंट्रेशन जो कैंप बनाया हुआ था, उस कैंप में क्या करते थे कि बहुत लोगों को ले जाकर रख देते थे, जिसको हम काल कोठरी बोलते हैं हमारे इंडिया में, मतलब जेल हो जाती है, सेम एज इट इज लाइक इट. ओके, और उसमें क्या उनको ले जाकर रख दिया एंड एने उसकी डेथ हो गई देन. ओके, मॉर्गट फ्रैंक हर फादर, सो जो उनकी एक और सिस्टर थी, उनके जो फादर थे मॉर्गन फ्रैंक, एक सेकेंड, हाँ, मॉर्गट फ्रैंक, हर फादर ऑटो, वो ऑटो अंपायर से थे. द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू आम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड. और वहीं एक ऐसे थे जो कि रिटर्न हुए थे वार के बाद आम्स्टरडैम में, बिकॉज दे वर बिलोंगिंग टू ऑटोमन अंपायर, और वो भी हाई क्लास लेवल की उस टाइम पे अंपायर था. दैट्स वाई दे वर सेव्ड फ्रॉम देयर, escaped. To find that her dairy had been saved, convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of the Diary of a Young Girl. और तभी उसने सोचा कि उसको अपनी जो सिस्टर थी, दैट इज एने फ्रैंक, तो उनकी पूरी जो कि वो लोग जूइश थे, तो वहां पे उनकी डेथ हो गई थी एने की एंड देयर फैमिली. अभी तो सिर्फ एने का ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, बट आई थिंक फैमिली हैड आल्सो गॉन. ओके, सो ये एक मेंशन करना चाहते थे एंड उन्होंने द डायरी ऑफ एने फ्रैंक करके एक इंग्लिश की बुक में इसको प्रिंट किया. द डायरी वाज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. ओके, सो ये जो डायरी थी फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये जो डायरी थी इनको एने फ्रैंक को 13 इयर्स जब इनकी एज हुई थी तो इनको गिफ्ट किया गया था. किसने किया था? एंड chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. So final entry जो हुई है इस डायरी की वो है 1 अगस्त 1944, यानी कि 1 अगस्त 1944 को इन्होंने डायरी लिखा होगा एंड देन आफ्टर दैट शी हैड डाइड. ओके, सो ये ऐसा इनकी डायरी का कहानी है. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच into many languages and become one of the world's most widely read books. ओके, सो यहाँ पर जो इनकी डायरी थी वो डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी, जर्मनी का लैंग्वेज होगा जो उन्होंने पहले यूज किया होगा. उसको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग भाषा में उसको यूज करके एंड आज ये बहुत ही पॉपुलर है. सो देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएटर productions and even an opera based on the diary. Okay, so बहुत ही ऐसे फिल्म्स है, बहुत ही ऐसे प्रोडक्शंस कंपनियां हैं जो कि इस टॉपिक्स को लेकर बहुत ही ऐसे फिल्म हो गया, सीरियल्स हो गए, या हम बोल सकते हैं कि
वेब सीरीज हो गए, ऐसा कुछ बनाया गया है इनके ऊपर। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। सो ये जो इनकी वर्क को कैसे फिल्म या और कोई ले रहा है, दैट इज डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक मैच्योर्ड गर्ल थी एंड इन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या किया है इनकी लाइफ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर, मैंने पहले ही रीड कर चुका हूँ 1 year बिफोर, सो आई हैड नॉट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं कि मैच्योर्ड है या नहीं है, वी विल ऑल्सो सी दैट इन दिस चैप्टर। सो अगर गाइज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास भी। ओके, सो एने फ्रैंक हैज बिकेम insightful mind, and the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Okay, so नाजी ऑक्यूपेशन जो हो चुका था, नाजीज्म का जो रूल था, उसमें कैसे एने फ्रैंक ने कैसे डिस्क्राइब किया है, दैट वी विल रीड। एने फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ मोस्ट रिनोवेड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। और जो कि इनकी डेथ हो चुकी थी, बट इनको ऐसा माना जाता है कि ये अपनी लाइफ में जीत चुकी हैं एंड सी हैज इन विक्टिम्स। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द पेज नंबर 50 पेज नंबर। ओके, सो राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो ये क्या कहते हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज होता है, मेरे को भी लगता है स्ट्रेंज जैसे दूसरों को लगता है। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं एंड वी मीट पीपल इन द रोड, तो वो क्या है, हमारे लिए स्ट्रेंज है, अनजान है। तो वैसा ही ये यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही है डायरी के साथ। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Okay, so ये बोल रही हैं कि but लेकिन also इसलिए भी क्योंकि ये आपको नहीं लगता कि कोई नहीं चाहेगा कि 13 ईयर की गर्ल ने क्या किया अपने स्कूल में, सुनना, ये बात सुनना। ओके, सो वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन ये कोई खास अहमियत नहीं रखता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना पसंद करती हूँ एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। सो बोलती हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रेटर नीड मतलब उनका कहना ये मेडल्स हो गया, जैसे कि ऑन द चेस्ट हमारे आर्मी जो हो गए या जो भी मीन्स ग्रेटफुल वर्क होता है तो उनको एक मेडल्स मिलते हैं, दैट इज ऑन द चेस्ट ओनली। सो शी वाज आल्सो फीलिंग प्राउड कि मेरे को भी एक दिन ऐसा कुछ मिलेगा। पीपल हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ओह, इट इज द वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी। सो आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड, you can also underline guys। so paper has more patience than people। Okay, so in the whole chapter, okay, you can see, I think, yeah, so in the whole chapter I like this sentence very much। I will tell the meaning। paper has more patience than people। मतलब patience मतलब क्या होता है कि इंतजार करना, okay, या कंट्रोल करना, आई थिंक आपके लैंग्वेज में, मेरे लैंग्वेज में कंट्रोल करना। सो पेशेंस, जैसे कि देखिए आजकल क्या होता है, जैसे हम बैंक में गए, ओके, हम जाते हैं, आप तो जाते ही होंगे। सो पैसे निकालने हमें एंड लाइन बहुत लंबी है, सो हमारे पास पेशेंस नहीं है, हम वहां शोर करने लगते हैं, ओके, और हम मीन्स बहुत गैदरिंग भी करते हैं। ये नहीं है कि हाँ भाई लाइन बनाओ, जो पहले आया वो बंदा ले ले पैसे
और देन वी विल टेक। ऐसा कुछ कोई नहीं है, सब चालाकी में रहते कि हाँ भाई मैं पहले जाकर निकाल लूं या मेरा पहले काम हो जाए, ये दुनिया ऐसी है। बट एनी फ्रैंक भी इस बात को जानती थी। बताइए 13 इयर्स की गर्ल ने इतना लिखा है, हम भी नहीं लिख पाएंगे इस उम्र में। ओके सो उन्होंने लिखा है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। बोलती हैं कि पेपर के पास बहुत ज्यादा पेशेंस है आदमियों से भी बढ़कर, बिकॉज आप उसमें अगर कुछ लिखते नहीं है तो वो यह नहीं बोलता ओ भाई तुमने तो लिखा ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे ही पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं बोलता। उस पे जब हम चाहे तभी लिखते हैं, उसके पास पेशेंस है। और दूसरी बात कि अगर हमने किसी से कुछ बता दिया तो वो बंदा क्या करता है, पेशेंस नहीं रखता, मतलब अपने पास नहीं रखेगा उस बात को, सोचेगा कि भाई जितना जल्दी हो सके उसको बता दो, उसको बता दो, उसको बता दो, लेकिन पेपर कभी नहीं बताता। ओके सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। आपकी क्या मीनिंग है आप कमेंट कीजिएगा। ओके आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. Okay, so बोल रही है कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ इसको, बिकॉज मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं डिप्रेशन में थी और बैठी हुई थी घर पर अपने चिन्स के साथ इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बहुत ही बोर्ड हो गई थी, बोर्ड मतलब कि चिड़चिड़ा हो गई थी, विथ नो एनर्जी एट इंटरेस्ट, लिस्टलेस मतलब कि एनर्जी लेस। ओके सो एनर्जी भी नहीं था, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। ओके सो इनके कहने का मतलब है कि इधर ही स्टे करना है और कहीं बाहर जाएं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रोडिंग। सो जिधर वो ब्रोडिंग कर रही थी देयर ओनली सी सेटल्ड। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और उन्होंने जाना कि हाँ भाई पेपर के पास बहुत ज्यादा पेशेंस होता है। And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bite of difference. तो ये कहना चाहती है कि और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा डायरी जो है वो कोई पढ़े, बट इन द फ्यूचर अगर कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड होता है तो मैं उसके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी। Now I am back to the point that prompted me to keep diary in the first place. I don't have a friend. Okay, so आप अंडरलाइन कर लीजिए I don't have a friend. मेन रीजन क्या थी एने फ्रैंक को अपने पास डायरी रखने की? That was the she didn't have any friend. That's why. Let me put it more clear. चलो थोड़ा अच्छे से और देखते हैं क्या हुआ था। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. ये तो कोई भरोसा नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की अकेले रहे पूरी दुनिया में। आई एम एंड आई एम नॉट, और मैं हूं ही नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। ओके सो इनसे 3 years एल्डर थी इनकी सिस्टर, एंड इनके पेरेंट्स भी थे जो कि बहुत प्यार करते थे। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और इनके पास पूरे 30 पीपल थे जिनको ये फ्रेंड्स कह सकते थे। तो भाई कैसे इन्होंने बोल दिया कि एक भी फ्रेंड नहीं थे। सो लेट्स आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। उनके पास बहुत बड़ी फैमिली थी, एक आंट भी थी एंड घर भी अच्छा खासा था। नो वन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। और मैं ये देखती थी कि मेरे जैसा कोई और नहीं है जिसके पास इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं। एक्सेप्ट माई ओन वन ट्रू फ्रेंड, और एक को छोड़ के। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। और मेरे लिए वही अच्छा समय होता है जब भी मैं दोस्तों के साथ रहती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं कुछ ज्यादा बोलती तो नहीं हूँ, बट ऑर्डिनरी जो थिंग्स हैं एवरीडे, जैसे कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने टी लिया है, आज मैंने कॉफी लिया, और आज मैंने कुछ होमवर्क ये किया, ये वर्क किया, ये मैं बस बातें करना चाहती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और हम ये भी नहीं चाहते कि हम बिल्कुल क्लोजर हो जाएं, और वही एक दिक्कत है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, और ये मेरी गलती होगी, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, दैट हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के बीच। टेल पर्सनल मतलब
कॉम्प्रोमाइज ही हो गया, पर्सनली फ्रेंड्स हो गए. सो इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू चेंज. दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. और ये तो बदल नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा चलो भाई किसी और को फ्रेंड बना लेते हैं, वो लड़की तो नहीं बनने वाली, तो डायरी को बना लिया. टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. तो इसको बुलाने के लिए अब इमेजिनेशन में जो आ गया था कि हाँ ये वो उसको मिटाने के लिए क्या किया इन्होंने. आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी वाई मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. तो इनकी डायरी का नाम क्या था, किटी. व्हाट, किटी. या सो इन्होंने बोला कि मुझे ये सब नहीं लिखना कि मेरे उस दोस्त ने क्या किया जिसके साथ मैं फ्रेंडशिप करना चाहती थी, बट हाँ मैं इसको बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ इस डायरी को, जिसका नाम है आज से किटी. सो ओरल कम्प्रिहेंशन है, प्लीज आप कर लीजिएगा अगर कोई हेल्प चाहिए. वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर्स दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो वैसे तो कोई समझ नहीं पाएगा क्या लिखा है मैंने किटी के मतलब डायरी में, और अगर मैं बताना भी चाहती हूँ तो मुझे ब्रीफ करना पड़ेगा, मुझे खुद स्केच मतलब समझाना पड़ेगा, और वो मेरी लाइफ की एक ब्रीफ स्केच होगी. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. मेरे पापा जो बहुत ही केयरिंग है और हेल्पिंग है और लविंग है, ऐसे मैंने बहुत कम को देखा है. डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25. ओके, सो हर फादर वॉज 36 and her mother was 25 when they got married. My sister Margot, okay, तो इनकी सिस्टर का नाम क्या है, मार्गोट, was born in फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. इनकी जो सिस्टर है मार्गोट, वो फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में जो है वो 1926 में उन्होंने बॉर्न किया था. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और इन्होंने 1929 में जन्म लिया था. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जब वो 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में ही थी. माई फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और 1933 में इनके फादर ने माइग्रेशन कर लिया हॉलैंड की तरफ, तो वो लोग सब लोग चले गए. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर व्हाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचएन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर. ओके, सो ये लोग हॉलैंड नहीं गए, इनकी मदर गई थी एंड इनको उनके पेरेंट्स ने आके क्या किया, एचएन जो मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और सितंबर में उधर गए थे एचएन, और दिसंबर में वहां से मार्गोट भी चली गई किधर, हॉलैंड में, तो ये इधर अकेली रह गई. एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन टू द टेबल एज द बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. सो मार्गरेट का बर्थडे था बिकॉज उनका जन्म ही हुआ था कभी फरवरी में. सो वो वहां पर पहुंची फरवरी में. कौन, एने फ्रैंक. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैं अपनी आगे की पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से चालू कर दी. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहीं रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. इन द 6th फॉर्म माई टीचर, फॉर्म मतलब क्लास, तो इन द 6th क्लास माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस. सो इनकी 6th क्लास में जो टीचर थी उनका नाम क्या था, मिसेस कुपेरस. आपको याद करना है, ये एग्जाम में जरूर आएगा. मिसेस कुपेरस थी दी हेड मिस्ट्रेस, और वहीं हेड मिस्ट्रेस थी. हेडमास्टर तो अगर कोई मेल होता दैट्स वाई, मैन होता तो, बट इधर तो मिस है तो मिस्ट्रेस. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. तो आपके एक स्कूल में भी होते होंगे फेयरवेल, होते हैं तो यस, नहीं होते तो नो करके कमेंट कीजिएगा. सो बोल रही हैं कि हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे फेयरवेल के दिन, लास्ट टाइम पे. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड
have an operation, so my birthday passed with little celebration. तो 1941 में जब इनका बर्थडे का टाइम आया, मीन्स क्लोज था बर्थडे, तो इनकी जो दादी थी बीमार हो गई और उनको ऑपरेशन किया गया। तो इनका जो बर्थडे था तो वो थोड़ा लिटिल मतलब अच्छे से नहीं गया, मतलब मनाया इन्होंने। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। सॉरी, इनकी जो ग्रैंड मदर है वो जनवरी 1942 में मर गई, डाइड हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मैं कितनी उनसे प्यार करती थी और अभी भी करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. Grandma's candle was light along with the rest. इस बार का बर्थडे मैंने नहीं मनाया या और कैंडल जलाया उन्होंने ग्रैंड माँ के याद करके ग्रैंड माँ को। The four of us are still doing well. और हम चारों अभी ठीक ठाक चल रहे थे। And that brings me to the present day of 20 June 1942. और 20 June 1942 आ गया and the Solomon dedicated of my diary. Okay, so oral comprehension है, I will put in description, please check. So last part है चैप्टर का। I think वीडियो लंबा हो गया बट we will complete it. तो इन्होंने क्या लिखा है डायरी में? डियरेस्ट किटी, सैटरडे 20 जून मिल्स या दिस पे। सो डियर किटी, our entire class is quaking in its boots. The reason of course quaking क्या है? Shaking with fear and nervous. तो उनकी पूरी क्लास जो थी वो नर्वस थी। क्यों? The reason ये of course is the forthcoming meeting in which the teachers decided who will move up to the next form and who will be kept back. तो रिजल्ट का टाइम था। फॉर्म मतलब मैंने आपको बताया क्लास है, तो इनकी टीचर रिजल्ट बताने वाली थी कि कौन फेल होगा कौन पास होगा। दैट्स व्हाई ऑल आर इन नर्वस। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जीएन एंड आई लव आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। पूरे लोग गेस कर रहे थे कि हाँ इतने मेरे को आएंगे इतने मेरे को आएंगे, उस पे वो हंस पड़ी। सीएन एंड जैक्स हु हैव स्टार्क्ड देयर एंटायर हॉलीडेज सेविंग ऑन देयर बेट फ्रॉम। तो ये लोग बेट लगाते थे। सीएन एंड जैक्स पूरी जो हॉलीडे थी, छुट्टियों के दिन थी, उसमें उन्होंने बिता दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जेस pleading glances and my angry outburst can't calm them down. तो वो दोनों लड़ रहे थे, क्या तू पास होगा? नहीं नहीं, तू नहीं पास होगा, तू नहीं पास होगा, ऐसे करके वो दोनों लड़ रहे थे। तो इसको गुस्सा आ गया एने फ्रैंक को। इसने बोला कांट यू काम देम डाउन, क्या तुम शांत नहीं बैठ सकते? इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन दी अर्थ। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं ये बताऊंगी कि हमारे क्लास में ऐसे बहुत डमी हैं जिनको रखना चाहिए क्लास में, बट टीचर्स ऐसे हैं जो उनको पास करवा देते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड एंड खुद के लिए इतना वरी नहीं हूँ, मतलब चिंतित नहीं हूँ। विल मेक इट, हम हो जाएंगे पास। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट इज मैथ्स। सो इनका एक सब्जेक्ट था मैथ्स जो वीक था, और उसके टीचर के साथ कुछ हुआ था, वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। सो एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, और हम जो कर सकते हैं वो है इंतजार, वेट। ओके, सो अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तो कोई भाई दुख मत हो जब तक रिजल्ट ना आ जाए, वेट करो। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मेरी अच्छी खासी पहचान थी हर टीचर से। देर आर 9 ऑफ देम, टोटल कितने थे? 9 टीचर्स थे। 7 men and 2 women। तो 7 मेल टीचर थे एंड 2 women टीचर थी। मिस्टर कीसिंग, ओके, द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ्स। तो मिस्टर कीसिंग जो थे वो ओल्ड फैशन टाइप टीचर थे जो कि मैथ पढ़ाते थे। वॉज एनर्ड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। ओके, सो वो
मेरे पे गुस्सा हुए या बोलते हैं ना कि टीचर पकड़ते हैं जिसको, हाँ, तो उस एने फ्रैंक को पकड़ा। क्यों? क्योंकि वो चैटरिंग बहुत थी, मीन्स बहुत बातें करती थी। After several warnings, he assigned me extra homework and essay on the subject, a charter box. तो जब उन्होंने डांटा बहुत, बट एने जो है वो शांत नहीं हुई, तो इन्होंने क्या किया, एट लास्ट एक ऐसे लिखने को दे दिया इनको एज अ पनिशमेंट। उसका सब्जेक्ट क्या था, यानी कि टॉपिक क्या था, हेडिंग क्या था, अ चार्टर बॉक्स। ओके, अ चार्टर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? I worried about that later. I decided. I jotted down the little in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मैंने सोचा कि भाई क्या लिखूं चैटर बॉक्स के ऊपर। तो चैटर बॉक्स मतलब, चैटर मतलब बहुत ज्यादा बातें करने वाली, बॉक्स मतलब डब्बा, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। उसको बोला था उसने, टीचर ने, और उसी पे बोल दिया कि आप ऐसे लिखो। That evening, after I had finished the rest of my homework, उस शाम को मैंने पूरा सारा अपना होमवर्क कर लिया, उसके बाद भी the note about the essay caught my eye, तो मेरा आंख चला गया उस टॉपिक पे कि क्या लिखूं मैं उसमें। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen, तो फाउंटेन पेन को चीव कर रही थी, यानी चिबा रही थी, और सोच रही थी कि क्या करूं, क्या लिखूं उसके बारे में। ओके, एंड anyone could ramble on and leave big spaces between the words। और दूसरे कोई होते तो क्या करते कि बड़े बड़े अक्षर में लिखते और बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ के पूरा कंप्लीट करके कल टीचर को ले जाकर सबमिट कर देते, बट ये ऐसी नहीं थी। आई थॉट एंड एक सेकंड, रैम्बल ऑन वर्ड्स, बट ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव the necessity of talking. I thought so, a statement make in such a manner that people believe it. Okay, so I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. तो इन्होंने 3 पेज पूरा लिखा जो असाइनमेंट दिया था मिस्टर किसिंग ने, दैट वाज अ चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखना, तो और किसिंग ने सेटिस्फाई भी हो गया। आई आर्ग्यूड दैट talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. So जो बातें करनी है वो हक है हर एक चिल्ड्रन का, और उसको, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं कंट्रोल करूंगी, एने नहीं, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्यूर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। ठीक है, लेकिन मैं इसको कैसे सुधार सकती हूँ जबकि मेरी माँ ही बहुत बातें करती थी। दैट्स वाई मैं धीरे धीरे लेकिन ट्राई करूंगी। एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स मतलब जनरेशन जो होती है, मीन्स आपके जो फादर में कोई ऐसे क्वालिटीज होंगे जो आप में आए हुए हैं। सो दैट वॉज ऑफ एने, हर मदर टैलेंट, चैटरिंग। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, और जब इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया तो मिस्टर किसिंग हंसने लगे, बिकॉज ऐसी बात ही इन्होंने कही है एने ने। बट वेन आई प्रोसेस्ड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइन्ड मी अ सेकंड essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox, something that cannot be corrected. Okay, so ऐसा कुछ जिसको हम करेक्ट ना कर सके, ऐसा एक, मीन्स इनको इसने बोला, किसने, किसिंग ने बोला एने को, और उसी पे बोल दिया फिर से ऐसे लिखो। आई हैंडेड इट एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons, और उनके पास कोई कंप्लेन भी नहीं थी लेसन्स, क्योंकि वैसे ये एने पढ़ती थी, बट चैटरिंग जो इनकी थी वो जो कि इनहेरिटेड था, उनकी मम्मी से मिला था उन्हें, सो दैट्स वाई ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी, और बार बार इसीलिए किसिंग इसको पनिशमेंट के तौर पे ऐसे लिखने को या असाइनमेंट दे देते थे। सो इस बार क्या टॉपिक मिला, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Anne Frank has punishment for talking in class. Write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. So 3rd जब लेसन चल रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने क्या टॉपिक दे दिया, क्वैक क्वैक क्वैक,
said Mr. Chatterbox. ओके, सो बतख को आपने देखा होगा क्वैक क्वैक करता है, सो वही इन्होंने बोला कि क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स बोला था एने को, क्वैक 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 कर रही है पूरी क्लास में, इस पे ऐसे लिखो, बताओ। द क्लास रोल्ड, क्लास पूरी हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और ये भी हंसने लगी, बोल रही हैं। दो आई हैड नियरली एक्सॉस्टेड माई ingenuity on the topic of चैटरबॉक्स। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इन्वेंटिवनेस और ओरिजिनलिटी। ओके, सो इन्होंने मतलब इसको स्वीकार किया बोल सकते हैं। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और इन्होंने सोचा कि नहीं अब बहुत हो गया, तीसरा टाइम नहीं मिल सकता। ऐसे हुआ तो भाई हर एक चैप्टर में ये मेरे को ऐसे देता रहेगा, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ और करना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल, और कुछ बिल्कुल ओरिजिनल, रियल में बिल्कुल कुछ ऐसा होना चाहिए। माई फ्रेंड सैने, ये थी एने, वो थे सैने, हुज गुड एट पोएट्री, जो कि पोएट्री पोएम लिखने में बोलने में अच्छा था या अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई टम्प्टेड फॉर जॉय, jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. तो इस बार जो क्या किया इन्होंने, एक पोएट्री ऐसा लिखवाया, मिस्टर किसिंग ने उसको क्लास में पढ़ा कि ये उनको लगा कि ये इसके ऊपर जोक है, बट दैट वाज ऑन दी मिस्टर किसिंग, उल्टा पड़ गया इस बार मिस्टर किसिंग को। आई फिनिश्ड माई पोएम, और इन्होंने अपना पोएम बोल दिया पूरा, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वो बहुत ही अच्छा था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स who were beaten to death by the father because they quacked too much. So इनकी जो टॉपिक थी वो थी एक मदर डक, बतख, फादर स्वैन थे, और 3 डकलिंग्स बेबी थे। तो दे वर बीटन टू डेथ, और वो मर गए क्योंकि वो क्वैक ज्यादा करते थे बाय दी फादर, फादर ने उनको मार डाला क्योंकि वो ज्यादा क्वैक करते थे इसलिए। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing's always making jokes these days. Yours, Anne. Extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. तो लास्ट में क्या हुआ कि जब थर्ड टॉपिक पे मिस्टर किसिंग ने लिखने को दिया कि क्वैक 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 सेड अ चैटरबॉक्स, सेड दी चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स एने को बोला था, और क्वैक 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 करती है तो चैटरबॉक्स, इस पे ऐसे लिख के लाओ। तो इसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तो इसने अपने फ्रेंड की हेल्प ली जो कि पोएट्री में बहुत अच्छी थी। उसने क्या करवाया, ऐसा पोएम लिखवाया, उसमें लिखवाया कि एक मदर थी, एक फादर थे, और 3 उसके बच्चे थे, तीनों ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, तो फादर ने उनको मार डाला। तो इसको जो मिस्टर किसिंग है उन्होंने रियल ले लिया, और उन्होंने सोचा कि अब इसका मजाक बनाना या इसको पनिशमेंट करना, इस बात के लिए, छोटी छोटी बात के लिए, चैटरिंग के लिए या बातें करने के लिए क्लास में बंद कर देना चाहिए। तो अगली बार से उन्होंने बंद कर दिया, और ऐसे कमेंट्स नहीं आ रहे थे मिस्टर किसिंग की तरफ से, होमवर्क पनिशमेंट कुछ नहीं था, और वो आराम से बातें करती थी क्लास में। तो ये था एक एक्सट्रैक्ट एने फ्रैंक के द्वारा। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। एंड प्लीज अगर आप अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज हर एक चैप्टर की स्पेशल वीडियो और पूरी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ कंबाइंड आपको समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में वीडियो बनती हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तभी जाइएगा, एंड कमेंट भी डाल दीजिए कुछ हो तो, एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स के पास। थैंक यू।